The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Lokman IAS and make your UPSC dreams come true. Download the app now. Hello everyone, myself Meghal Sharma and I have secured All India Rank 4 in Indian Statistical Services Examination 2022 conducted by UPSC, and this was my second attempt into it. If I talk about my introduction, then I'll start with I did my entire schooling followed by graduation from Jaipur, and in 2021 I've completed my masters in statistics from University of Rajasthan. Soon after I've completed my graduation, starting from the very first year of post-graduation, I have begun preparing for this ISS exam, and under the guidance of Sudhir sir from Deep Institute, Delhi, I have been able to crack this exam in my second attempt. In today's video, I'll be like to share some of the do's and don'ts which I find myself very important during the preparation. It's like everyone who is there for preparation of this exam is very well known about the books, about the papers which we have to focus upon, etc. But I would like to focus on some of the general do's and don'ts which we have to keep in mind during preparation. So let's start with some do's. Number one, first of all, I think it is important for all of us to realize that whether our strength is in objective papers or in descriptive papers. Because if we find that we are more concerted or more dedicated towards descriptive papers, then we should follow that and we should focus on that, because that will help us in increasing our score better. And focusing on one of the papers, it's not like we have to focus on one of the papers, but it's like we have to be more strengthening one of the more papers, whether it is objective or descriptive one. Number two, I think is speed is the most important factor that we have to keep in mind while preparing for this exam. Like जितनी ज़्यादा आपकी अच्छी कंसिस्टेंसी और अच्छी स्पीड बनी रहेगी, उतना ज़्यादा आप अपना मैटर पेपर में लिख पाएंगे और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा. सेकेंड फैक्टर विच आई कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट इज़ दी स्पीड, because speed writing with proper speed and precise speed is very much important in this examination, whether we talk about objective or descriptive papers. So in my opinion, we have to work on this from the very first day we are preparing our notes. Like if we are preparing our notes and we are writing it on our registers and our copies, we have to make speed of it. We need to keep in mind that we have to write, we have to frame notes very speedily, so that at last जब हमारा एग्जाम आने वाला हो तो हम उस टाइम पर केवल यही फोकस ना करते रह जाएं कि हमें स्पीड से लिखना है या स्पीड से पूरा पैकअप करना है. इसके बजाय जब हम नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो फ्रॉम द डे वन हम इतने स्पीडली थोड़े अपनी स्पीड को बनाएं, लिखने की स्पीड को बनाएं, ताकि लास्ट तक जब हम टाइमली लिखना स्टार्ट करें, देखिए 3 घंटे का पेपर है या 2 घंटे का पेपर है, तो जब हम लिखना स्टार्ट करें तो वो हमारे लिए बहुत उतना ज़्यादा डिफिकल्ट ना हो वो चीज़, अगर हम उसे स्टार्टिंग से करने लग जाएंगे तो. नंबर 3 इज़ कंसिस्टेंसी. ऑफ कोर्स ये पेपर ऐसा है जो यूपीएससी एक तो कंडक्ट करा रहा है, तो बहुत सारे इसमें अटेम्प्ट्स हमारे लग जाते हैं. कुछ लोगों का 3rd, 4th, 5th काफ़ी सारे अटेम्प्ट्स लग जाते हैं. तो कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अगर हम प्रिपरेशन में एग्ज़ाम देते समय पूरे टाइम कंसिस्टेंट रहेंगे इस चीज़ को लेकर कि अगर हमारे दिमाग में ये रहेगा कि भाई बनना है तो ISS बनना है, तो वी कैन डू इट, वी कैन गो, वी हैव टू गो लीप्स एंड बाउंड्स टू अचीव दिस. दैट इज शुड बी देयर इन एवरीवन's mind who are preparing for this. Now I would like to give some of the don'ts which I feel are very important when we are preparing for this exam. Number 1, please do not study from multiple sources. It's like आप जितने ज़्यादा अपने पास सोर्सेज रखेंगे, आप उतने ज़्यादा कंफ्यूज होंगे कि मुझे कौन सा टॉपिक कौन से सोर्स से पढ़ना चाहिए, कौन से नहीं. तो आप सारे सोर्सेज देखिए, जस्ट गो थ्रू ऑल द पॉसिबल सोर्सेज दैट यू कैन, बट ऐसा करिए लास्ट में जब आप पूरी प्लानिंग आपकी हो जाए, आपकी पूरी एनालिसिस हो जाए, तो लास्ट वाली जो आपका स्टेप है पूरी प्लानिंग का, वो इस तरीके से रखिए कि एक टॉपिक
आपका एक परफेक्ट सोर्स के थ्रू हो। ऐसा नहीं कि जैसे आप अगर सैम्पलिंग ही दे रहे हैं तो आपने जो भी परफेक्ट सोर्स लिया है, पीवी सुखात में बुक कंसिडर कर रहे हैं या कुछ भी कोई और बुक, किसी के लिए इकोनोमेट्रिक्स के लिए आप जो भी बुक ले रहे हैं, अगर आप उसको आप परफेक्ट एक स्कोर रखिए, एक सोर्स रखिए आप एक उसके लिए जो भी आपका टॉपिक है। डू नॉट जस्ट जंप इनटू मल्टीपल सोर्सेज, जैसे एक टॉपिक का आप सब टॉपिक्स बनाकर एक किसी और बुक से ले रहे हैं, किसी और कोचिंग के नोट से ले रहे हैं या किस तरीके से कर रहे हैं। सो इट इज़ बेटर टू कीप योर सोर्सेज वेरी मच कंसाइज। तो दिस विल रियली हेल्पफुल फॉर प्रिपरेशन ऑफ नोट्स एंड ऑल्सो क्रैकिंग इन एग्जाम। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये रहेगा कि इट विल नॉट मेक यू कंफ्यूज। Second don't that I follow is do not study 3 papers in paper 4. Like we have to choose only 2 papers. We have to attempt 2 papers in 2 sub papers in paper 4. So just try to study only 2. There are some people who study 3. I am not saying that is not good, but for me, in my opinion, it is better कि आप 2 ही पढ़ें, क्योंकि पेपर 4 मेरे मायने में is the easiest one ऑफ ऑल द पेपर्स। तो अगर आप 2 कोई भी सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं तो वो अगर आप इस तरीके से कवर कर रहे हैं कि यू कैन स्कोर एटलीस्ट 120 130 मार्क्स इन दैट, तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा इंस्टेड कि आप 3 पर फोकस करें और अपना टाइम भी वेस्ट करें। उन 2 को ही इतना अच्छे से बिल्डअप कर लीजिए कि ज़रूरत ही ना पड़े कि तीसरा पढ़ना भी पड़ रहा है नहीं, बिकॉज इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन दिस थिंग। नंबर 3 डोंट जो मुझे लगता है वो ये लगता है कि डू नॉट टेक अननेसेसरी रिस्क इन ऑब्जेक्टिव पेपर्स। काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग होती है, तो मेरे हिसाब से वही अटेम्प्ट करें जिसमें आप 100% श्योर हो, बिकॉज इट्स लाइक it is better to attempt less number of questions in objective papers unless they all are correct. So जहाँ भी आपको लगे कि आप नहीं हैं श्योर उतने ज़्यादा, तो नहीं अटेम्प्ट करें उसको। मेरे हिसाब से कम रिस्क लेना इज़ बेटर इन ऑब्जेक्टिव पेपर्स। आप वो रिस्क चाहे डिस्क्रिप्टिव में ले सकते हैं, आपको जो लग रहा है आप 50-50 हैं किसी क्वेश्चन पे, सो यू कैन राइट अबाउट दैट जितना आपको आता है to any question, but don't do this in objective if you are not sure about this. And number 4, I would like to tell that every aspirant should know and understand this thing, that we cannot cover the entire syllabus, because this exam actually doesn't have a syllabus. It can carry questions from anywhere of the topic. So just segregate. आप इस तरीके से हर टॉपिक को अपने दिमाग में, अपने नोट्स में ऐसे सेग्रीगेट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट और नॉट सो इम्पॉर्टेंट में। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो आपको कवर करने ही करने हैं, जो कि आप पुराने पेपर्स देख के ट्रेंड एनालाइज करके देख सकते हैं कि विच सब टॉपिक्स इन एवरी टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप उस हिसाब से उसको सेग्रीगेट कर लीजिए, और जो नॉट सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप एंड के लिए रखिए। जब आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाए और आपको लग रहा है कि हाँ अब मेरे पास टाइम है, दैट आई कुड स्टडी मोर टॉपिक्स और आई कुड स्टडी मोर सिलेबस और कवर मोर सिलेबस, सो इन दैट केस आप जो आपके जो नॉट सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर कवर कर सकते हैं। लेकिन शुरू से ही ये दिमाग में लेके ना चले कि हमें इस पूरा सिलेबस कवर करना है। पहले उसी पर फोकस करें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड सेकेंडली जो आपकी स्ट्रेंथ है। हम सबकी कुछ ना कुछ, हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं तो हम सबकी कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ रहती हैं कि हमारा इन्फरेंस स्ट्रांग है या डिस्क्रिप्टिव स्ट्रांग रहता है, किसी का सैम्पलिंग रहता है। तो उसी से स्टार्ट करते हुए, अपनी स्ट्रेंथ से स्टार्ट करते हुए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करें। एंड देन इफ़ यू हैव टाइम एट द एंड, आपको लग रहा है कि हाँ पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है और मैं कुछ और भी पढ़ सकती हूँ या पढ़ सकता हूँ, तो आप और टॉपिक्स पर जाएं। ये मेरे लिए, मुझे लगता है कि ये कुछ डूज और डोंट्स हैं जो शायद हम सबको फॉलो करने चाहिए। एंड एक और पॉइंट मैं अपनी इस वीडियो में ऐड करना चाहूँगी उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि वो कोचिंग जाना, कहीं पे जाकर कोचिंग लेना अफोर्ड नहीं कर सकते या उन्हें सही नहीं लगता है। तो उनके लिए मैं कहूँगी कोचिंग लेना ना लेना उनके पर्सनल चॉइस पर डिपेंड करता है। पहली चीज़, मैंने कोचिंग इसलिए ली थी बिकॉज आई वांट कि मैं पूरे अच्छे से इस पेपर के बारे में जानूं और मुझे एक कांस्टेंट गाइडेंस चाहिए थी। एक पहले अटेम्प्ट में तो एटलीस्ट मैंने पहले अटेम्प्ट के लिए ही कोचिंग ली थी, तो मैं यही चाहती थी कि आई वांट अ प्रॉपर डायरेक्शन टुवर्ड्स माय प्रिपरेशन। मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ गलत डायरेक्शन में जाकर पढ़ाई कर रही हूँ, बिकॉज ये ऐसा पेपर है, आपको यू नीड टू बी वर्किंग स्मार्टली ओवर हेयर। हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। तो उस चीज़ के लिए मैं ये सोचती थी कि कोचिंग की ज़रूरत है। बट अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो मैं उन्हें यही बोलूँगी कि बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज हैं आजकल इंटरनेट पे जहाँ से आप नोट्स ले सकते हैं। वी हैव NPTEL, जहाँ पर काफ़ी लोगों को पता होता है कि काफ़ी अच्छे
क्वालिफाइड प्रोफेसर्स वहाँ पे पढ़ाते हैं आपको सारे टॉपिक्स, आप वहाँ से ले सकते हैं। और आप कॉलेज और सारा पोस्ट ग्रेजुएशन और अगर आप ग्रेजुएशन कर रखे तो आपके काफ़ी अच्छे नोट्स होते हैं वहाँ के। मतलब सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा हैं चीज़ें जहाँ से आप अपने नोट्स ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। सो इट्स नॉट लाइक कि विदाउट कोचिंग आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये सोचकर अपना मोरल डाउन ना करें कि हमें कोचिंग की ही ज़रूरत है या कोचिंग वाले ही IAS बनते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका डेडिकेशन और आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में और सही स्ट्रैटेजी के साथ होगी, सो यू कैन अचीव योर गोल एंड यू कैन डू दैट। सो एट लास्ट आई वुड से फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू DKT प्लेटफॉर्म जिन्होंने मुझे मौका दिया टू एक्सप्रेस माई वर्ड्स, and I would wish a very good luck to all the aspirants, and I would just say that be dedicated towards your goal, and doesn't matter how much attempts it is taking, unless and until you are very much confident about being an ISS officer, that you could be an ISS officer. If you are confident enough, you will definitely crack it. Thank you so much.